Welcome to VLearn, Virtual Learning Network. This is session number 3, Multiple Meanings of Language to Literature. Topics to be covered in this session are multiple meanings and extended meanings compared, related multiple meanings, a word used as different parts of speech, homonyms, words having the same sounds and spellings, related multiple meanings, a word used as different parts of speech. So let's start with the multiple meanings and extended meanings compared. One reason why your vocabulary may be poor is that you know only one of the many meanings of the word. This has two disadvantages. First, your overall comprehension of a passage of prose or poem may be poor because you are not able to grasp the meanings of words from the context. Secondly, with only a few of the meanings of the words known to you, your writings may also be poor. So that is why we need to know in this unit we shall deal with the possible meanings of the word. For example, we may leave out some of the colloquial expression, that is those used in the familiar conversations but not informal writings. So let's see how can we do that. Let's start with the multiple meanings and extended meanings compared. Extension of the meanings of words can be unlimited as they will depend on the writer's imagination and the number of different situations dealt with. एक्सटेंशन जो होता है मीनिंग्स का वो एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट बहुत ही अनलिमिटेड रहता है क्योंकि ये राइटर की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है. एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सपेंशंस हो सकती हैं. सिर्फ ये डिपेंड करता है राइटर की इमेजिनेशन पे और उसने कैसी सिचुएशन के साथ डील करते हुए उसे लिखा. सो हियर वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड लाइट which can be used as a noun with different meanings. Like we don't get any sunlight here. एक तरीके से आप इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं. Another could be please throw some light on this matter. जिसका मतलब होता है कि we want to explain that. Throwing some light means explaining that matter. Buddha was the light of Asia. That means the one who brought the spiritual knowledge to Asians. In this, light is used in its first one, sunlight. When we talked about the sunlight, we don't get any sunlight. In that case, light is used in its literal sense, but in the other sentences, it is used in its extended senses. इसी तरीके से एक से कई ज़्यादा उसके मीनिंग्स हो सकते हैं और फिगरेटिव यूज़ किया जा सकता है वर्ड का. अब अगर हम लाइट का एग्जाम्पल लें एज एन एडजेक्टिव वो किस तरीके से यूज़ होता है तो हम देख सकते हैं आर बैगेज इज़ लाइट, he has been assigned very light duties. तो यहाँ पे आप एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं इवन दो द मीनिंग ऑफ द लाइट अबव आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर. कहीं ना कहीं दोनों मीनिंग एक ही जैसे हैं. दैट मीन्स हल्का होना, लाइट होना, बट दे आर इन फैक्ट यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वहाँ पे बैगेज के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर ड्यूटीज़ के लिए यूज़ हुआ है. तो कॉन्टेक्स्ट दोनों का डिफरेंट रहा. रिलेटेड सिंपल मीनिंग्स में अगर हम बात करें मल्टीपल मीनिंग्स में तो हम कह सकते हैं कि अ वर्ड कुड हैव अ नंबर ऑफ लिटरल मीनिंग्स विच वर यूजुअली रिलेटेड इन सम वे. तो वर्ड में जितने भी अलग अलग लिटरल मीनिंग्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेट तो ज़रूर करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा. फॉर एग्जाम्पल बियरर. बियरर का अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो अ पर्सन हु बियर्स और कैरीज. एग्जाम्पल द बियरर ऑफ दिस लेटर, यानी कि जो लेकर जाता है, यानी कि जो कैरी करता है. अ पर्सन हु होल्ड्स अ चेक फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू हिमसेल्फ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बियरर, जो पेमेंट ऑफ मनी खुद को चेक करता है. एंड अगेन इन इंडियन इंग्लिश द वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर अ मेल सर्वेंट, particularly who serves food. So all these meanings have common element in the sense that a person carries something.
तीनों में यही है कि कुछ ना कुछ कैरी करता है, इधर फर्स्ट में आप कुछ सामान कैरी करना, कुछ लेटर, सेकंड में पेमेंट या मनी कैरी करना, और थर्ड में कुछ फूड या किसी तरीके का इस मटेरियल जो मेल सर्वेंट कैरी करते हैं. तो ऑलमोस्ट सभी मीनिंग्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद, they have almost same meaning, they carry something in each other, but the different meanings are associated with different context. रिलेटेड सिंपल मीनिंग्स में हम ये भी कहा जा सकता है कि मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड यूज एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अलग अलग तरीके का जब उनका मीनिंग है लेकिन वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ किए जाते हैं. व्हेन अ वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, जब एक वर्ड के कई मीनिंग्स हों तो हम उनको अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं. एंड वी कैन मेक आउट द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन द सेंटेंस और इन द पैसेज, और हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग उसके सेंटेंस या पैसेज से क्लियर आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये किस फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हुआ है. द मीनिंग यूजली रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ. तो यूजली हम देखते हैं कि कोई ना कोई सिचुएशन से रिलेट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें की वर्ड को, तो यहाँ पर की वर्ड जो है हम एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ द बॉक्स. ये अगर देखा जाए यहाँ पर ये मिडनाइट ऑन द ग्रेट वेस्टर्न, थॉमस हार्डी की लिखी बुक में से मैंने ये सेंटेंस लिया, जिसका यहाँ पर हम अगर देखें तो की का मतलब बनता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉकिंग और अनलॉकिंग अ डोर और अ बॉक्स. सो अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ हिज बॉक्स. अपने जो बॉक्स की है उसने वो लटका रखी है गले में. Another way we can use this keyword is the way, like at the end of the unit, there is a key to the exercises. यहाँ पर अगर हम की देखें तो explanations और answers के लिए यूज़ हुआ है कीवर्ड. तो end of the unit पे आप की देख सकते हैं इन exercises की. नेक्स्ट वन इज द कीज ऑफ द टाइपराइटर आर जैम्ड. यहाँ पर हम टाइपराइटर की उस पार्ट की बात करें दैट आर प्रेस डाउन टू प्रोड्यूस ए इम्प्रेशन ऑफ द लेटर्स और साइन ऑन पेपर्स. सो एक और तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ही सैंग इट इन अ रॉन्ग की, यानी कि म्यूजिकल नोट्स के लिए भी हम कई बार कीज वर्ड का यूज़ करते हैं. तो वर्ड की हैव मल्टीपल मीनिंग्स इवन व्हेन दे आर यूज एज वर्ब ऑल्सो. वर्ब में भी इनके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हम देख सकते हैं, जैसे कि द सितार हैज़ टू बी कीड प्रॉपरली टू प्रोड्यूस द करेक्ट साउंड. तो यहाँ पर हम उस इफेक्ट को, उस काम को कीड बोल रहे हैं. द स्ट्रिंग्स हैव टू बी टाइटन्ड और लूजन सो दैट द राइट नोट्स आर प्रोड्यूस्ड. Another way, this factory is keyed to produce goods for the army, like made ready or suitable. So in this way we can use this keyword as a noun as well as a verb. So there are related multiple meanings in a one word. Another way, here we can use the multiple meanings in abstract and concrete meanings. यहाँ पर अगर आप देखें तो समटाइम्स अ वर्ड रेफर टू बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मीनिंग्स. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर तो स्पिरिट वर्ड का यूज़ हुआ है. वी आर गोइंग टू पुट हिम इन स्पिरिट. खुशवंत सिंह ने अपनी बुक मार्क ऑफ विष्णु में लिखा है. यहाँ पर कॉन्क्रीट मीनिंग है, दैट मीन्स मिथाइलेटेड स्पिरिट, जो कि हम इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं. अनदर थिंग, यहाँ पर आपने स्पिरिट वर्ड का यूज़ किया है जो एक कंक्रीट टर्म है, यानी कि यू कैन टच दैट. Another way we can use this word in abstract term is the spirit leaves a body after death. That means हमारी आत्मा, हमारा सोल, जो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म हो गई इस तरीके से. तो हम एक मीनिंग के एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, एक वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मीनिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं. Now about the phrasal verbs. In this section, we'll deal with the verbs which acquire new meanings by the addition of an adverb or a preposition. Such combinations are called phrasal verbs. The verb take can form the following phrasal verbs by an addition of different adverbs or preposition. अब take word के साथ हमने अलग अलग adverbs या prepositions लगाए तो वो अलग अलग तरीके से काम करने लगेगा. जैसे कि आप देख सकेंगे यहाँ पे let's take up this matter with the principal. तो यहाँ पर हमने टेक के साथ अप लगा दिया एक एडवर्ब, जिसका मतलब हो गया डिस्कस करना या कंसीडरेशन में लाना.
और भी कई तरीके से हम टेक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लाइक डोंट बी टेकन इन, अगर हम इन लगा देते हैं बाय द फॉल्स प्रोमिसेस, यहाँ पे मतलब बन जाता है चीटेड या डिसीव्ड। द चाइल्ड टुक टू म्यूजिक लाइक अ डक टू वाटर, यहाँ पे मैंने टुक के बाद टू वर्ड का यूज़ करा प्रेपोजिशन का, जिसका मतलब है कि उस चीज़ की लाइकिंग कंसीव कर लेना, कंसीव्ड लाइकिंग फॉर इट। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर, अगर मैं ओवर शब्द का यूज़ करती हूँ, प्रेपोजिशन का यूज़ करती हूँ, तो इट ब्रॉट अंडर इट्स कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। सो ऑफ अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स इट लेफ्ट द ग्राउंड। डोंट टेक हिम फॉर अ फूल, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने डोंट टेक हिम आगे लगा दिया फॉर, तो दैट मीन्स कंसिडरेशंस। अ वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक वर्ड को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, समटाइम्स अ वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विद डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शंस, दैट मीन्स इट इज़ यूज बोथ एज अ वर्ब एंड अ नाउन। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं पार्ट वर्ड का, जिसे हमने पार्ट्स ऑफ दिस टाउन आर ब्यूटिफुल, दैट मीन्स यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है ये। पार्ट ऑफ दिस टाउन मतलब हिस्से जो हैं टाउन के वो बहुत सुंदर हैं। और अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, पार्टिंग माई हेयर इन द करेक्ट फैशन, तो यहाँ पर आपने इसे वर्ब की तरह यूज़ करा है कि आपने पार्ट कर दिया, यानी कि बीच में से आधा आधा हिस्सा कर दिया इन द करेक्ट फैशन, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं चार्म वर्ड का भी हम एज नाउन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कपल वर्ड का, कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे चार्म वर्ड आप देखें तो एंड सेटल इन लाइक अ चार्म, इट वॉज सेटल इन लाइक अ चार्म, तो यहाँ पर हमने नाउन की तरह यूज़ करा इसे। और शी कैन चार्म यू विद हर स्माइल, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ कि काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शी कैन चार्म यू विद हर स्माइल। अब यहाँ पर अगर नाउन एंड एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लें तो काइंड वर्ड जो है, काइंड अगर हम देखें तो एन ऑफरिंग ऑफ कैश एंड काइंड, काइंड यहाँ पर हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यूजिंग गुड्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स रादर देन मनी। और अगर एडजेक्टिव देखें, इट इज़ वेल टू बी काइंड टू द पुअर, तो आप देख सकते हैं कि पुअर के साथ हमें काइंड रहना चाहिए, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। नाउ अबाउट द होमोनिम्स, होमोनिम्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि होमोनिम्स में हम क्या कर सकते हैं। होमोनिम्स आर द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, दैट मीन्स दे हैव थ्री थिंग्स इन कॉमन, दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, दे हैव सेम स्पेलिंग, दे आर यूज्ड एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मिंट, वी ग्रो मिंट इन आर किचन गार्डन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों केसेस में मेंट की सेम रहेगी, और सेम पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ नाउन की तरह ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे दोनों मेंट को। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो हम अपने किचन गार्डन में मिंट उगाते हैं, दैट मीन्स एक प्लांट जिसकी लीव्स जो चटनी और फ्लेवरिंग के लिए यूज़ हम करते हैं, एंड दीज कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट। यहाँ पर मिंट का मतलब है वो जगह जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमने मिंट वर्ड का यूज़ किया इन सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, इन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। सो होमोनिम्स एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग एंड सेम पार्ट ऑफ स्पीच, बट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर डिफरेंट। होमोनिम्स अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर आर प्रोनाउंस एंड स्पेल्ड अलाइक, यानी कि स्पेलिंग सेम रहेगी और प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, पर डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। सम यंग पीपल प्रेफर टू लोफ अबाउट रादर देन वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर हम लोफ अबाउट की बात करें तो यहाँ पे लोफ का मतलब एक वर्ब हो गई यहाँ पे, जिसका हम कह सकते हैं कि इधर उधर आइडली घूमना या स्पेंड करना टाइम आइडली। प्लीज़ गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि अ मास ऑफ ब्रेड कुकड एज सेपरेट क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी अलग अलग आप जानते हैं लोफ ऑफ ब्रेड जो होती है। यहाँ पर हमने इसे नाउन की तरह यूज़ किया, तो आप देख रहे हैं कि होमोनिम्स है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। होमोनिम्स यूज फॉर पन्स,
राइटर जो है यूज़ करते हैं वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग्स. यूजुअली ये पन के लिए यूज़ होता है. 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग क्रिएट करेगा ताकि ये विटी, क्लेवर एंड अम्यूजिंग एक इफेक्ट दे सकें पोएट्स या राइटर्स हम कह सकते हैं. जैसे कि हाउ इज़ लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर. दैट मीन्स यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई लिवर में. आप देख सकते हैं द वर्ड लिवर कैन बी ईदर ऑफ 2 वर्ड्स, बोथ ऑफ विच वुड फिट द कंटेक्स्ट अबव. लाइक इसे लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर लिवर इज़. दैट मीन्स योर ऑर्गन कितना बढ़िया है आपका ऑर्गन. यानी कि अगर आप लिवर आपका ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली यू कांट लिव योर लाइफ इन अ गुड कंडीशन. तो लाइफ किस पे डिपेंड करती है? हमारे लिवर पे, यानी कि ऑर्गन इन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस बाइल एंड क्लीन्स द ब्लड. Or it could also mean life depends on the person who lives it. That means the liver. This play on the word liver is called a pun. Homonyms, word having the same sounds but different spellings. आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट रहेंगी बट यहाँ पर साउंड सेम रहेगा. इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स, यानी फोनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम कि साउंड जो है वो सेम रहेगी पर स्पेलिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा. होमो मीन्स सेम, तो फोन्स दैट मीन्स फोनेटिक्स यहाँ पर आपके सेम रहे. जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं डो एंड डो, दोनों ही नाउन की तरह यूज़ होंगे. DOE, डो जो है इट्स अ नाउन. डो प्लेड अबाउट ऑन द ग्रास. यहाँ पर डो का मतलब होता है एक फीमेल डियर. DOUGH जो डो है दैट मीन्स पेस्ट ऑफ व्हीट फ्लावर. तो विमेन मेड डो विद द ब्रेड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है एक पेस्ट के लिए यूज़ होता है वाइट फ्लावर के. एंड होमोनिम्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं द पेयर ऑफ वर्ड्स यूज हियर टू द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच बट देर आर पेयर ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस अलाइक बट स्पेल्ड डिफरेंटली. यानी कि स्पेलिंग्स डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा एंड दे आर यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले हमने देखा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच में काम करे वो, यहाँ पर हमने इनको डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में देखा. BRAID, ब्रेड इज यूज एज नाउन. दैट मीन्स strands of hair woven together. Girls wore her hair in braids. That means hair के जो strands होते हैं जो इकट्ठे हम woven together, they are called braid. Next one is used as BRAYED, braid is used as noun. जैसे कि the donkey brayed loud. It is like made a sound like that of the trumpet. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये verb की तरह काम करेगा. Words having the same spelling but different sounds. जिनके सेम स्पेलिंग्स हैं पर साउंड्स डिफरेंट हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं a row of books stood on the shelf. यानी कि another one, there was a big row outside my house. First one is row, that means a number of things in a line. It is pronounced as row. And another one, second में आप देख सकते हैं big row outside my house. That means row means noisy disturbance. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स जो है उनका डिफरेंट रहेगा. वर्ड्स विद सम सिमिलैरिटी इन साउंड एंड स्पेलिंग, जिनकी थोड़ी सी साउंड और स्पेलिंग दोनों में ही कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है. अब तक हमने देखा कि वो वर्ड जो ये प्रोनाउंसिएशन सेम है या स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और इसी वजह से इनमें थोड़ा सा कभी कभार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेस और एक्सेस. एक्सेस इज राइट ऑफ अप्रोचिंग और वे टू अ प्लेस और एक्सेस इज द फैक्ट ऑफ बीइंग मोर देन व्हाट इज़ प्रॉपर. ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है जब चीज़, उसे एक्सेस बोलते हैं. फर्स्ट वर्ड में मतलब कि हमें अप्रोच करना है उधर. देयर इज़ नो एक्सेस टू द हाउस थ्रू दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और एक्सेस की अगर बात करें तो एन एक्सेस ऑफ रिच फ्राइड फूड इज़ बैड फॉर एनीवन. अनदर वन कैरियर अगर हम देखें और करियर देखें तो करियर की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स प्रोग्रेस थ्रू लाइफ या फिर जैसे प्रोफेशन हम कह सकते हैं उसे. और कैरियर की अगर हम बात करें तो अ पर्सन और कंपनी दैट कैरीज गुड्स और पीपल फॉर पेमेंट.
एग्जाम्पल के तौर पे हम करियर का देख सकते हैं कि अ करियर इन जर्नलिज्म इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। तो इसमें प्रोफेशन अगर हम बनाएं तो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी या पर्सन जो गुड्स या पीपल जो है वो कैरी करता है फॉर पेमेंट। Now, some do it yourself questions for you. Give two meanings each of the following words and say in a few words what is common to both. Wire, bank, principal, and bench. You need to tell the difference between alternate and alternative, carrot and carrot. So, that's all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.